So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Martiza Kwani, and today we are going to discuss the causes of war, section 1, why the War of Independence was held and everything. So, first we'll look into some introductions, and this is particularly videos for looking over to the notes because sometimes we actually learn, but going through the notes is also very important. So it's the notes of Muhammad Yusuf Mamun that we will go today for. So let's begin with the causes of war. So yeah, first of all, we have an introduction which says ki the war began on 10 May 1857, which is not so important that you learn the date. It's just important that you know the year when War of Independence was held. It is like 1857 to 1858. Like it was for 1 year, almost. It was the war that was fought between the Indians. Okay, everyone knows for war Indians, all the Muslims, all the Hindus, everyone were Indians, and the British. Okay, the event is actually known as the Great Indian Rebellion. It is known as the Great Revolt. It is known as the War of Independence. The Sepoy Mutiny, the Mutiny. It's known by many famous names. Okay, so this was something which was started from Meerut and all over the Indian region. So ये कहाँ पर हुई थी? इंडिया के अंदर हुई थी. It started from Meerut and it ended on August 1858. Okay, so this was introduction. Like we can have 7 mark a question, we can have 14 mark a question, we can have 4 mark a question. If it's ask you what were the causes of war, तो आपको 14 mark में पूछेगा. अगर 14 mark में पूछ रहा है then you need to give like 6 reason. उसके साथ आप introduction भी लिख लेना. So the एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप पढ़ के आए हो. मतलब you should be like okay that you have done something. 7 marks के क्वेश्चन में आपको सिर्फ 3 रीजन्स लिखने होते हैं. इंट्रोडक्शन नॉट सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो सबसे पहले एग्रेरियन पॉलिसी हमारे पास कॉजेज ऑफ वॉर के अंदर. एग्रेरियन पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जिसको हम कब हुई थी? 1852 के अंदर ही, मतलब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होने से 5 साल पहले की थी, जिसमें ये लैंड कॉन्फिस्केटिंग पॉलिसी थी जो लॉर्ड डलहाउसी थी. 1852 में हुई थी. लॉर्ड डलहाउसी ने इंट्रोड्यूस की थी. एक ब्रिटिश पॉलिसी थी. इस पॉलिसी के अंदर कि अगर जो मेरे पास लैंड ओनर है उसके पास उसके घर के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या गवर्नमेंट के हिसाब से कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो गवर्नमेंट एक्चुअली में मानती है, तो उसका जो लैंड होगा वो ब्रिटिश ले लेगा. उसके ब्रिटिश के अंदर वो कॉन्फिस्केटेड जाएगा. ठीक है, अब इधर लिखा है इफ द लैंड documents are invalid, the land owners were deprived of their lands as they failed to prove their property. अब कुछ ऐसे लोग थे कि they could not prove their actual में कि yes this is their documents and stuff. ठीक है, तो उस वजह से बहुत सारे लोगों की land they were deprived of their lands for sure. उसके बाद वी हैव डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो 1852 के अंदर हुई थी, जिसके अंदर बोला गया था इफ़ अ हाउस ओनर डाइज, ठीक है, एंड इफ आफ्टर दैट डू नॉट हैव अ मेल एयर, सो the land will be confiscated by the British and you cannot adopt any son. So it only tells us about that. And due to this many states like Jhansi, Satpura, Udh like fell under the British control. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ये बहुत ईजी चीज़ है. लाइक मोस्ट ऑफ द, अगर आप पूरी हिस्ट्री सेक्शन 1 के अंदर देखो, आपको हर जगह मोस्टली रीजन्स बताओ क्या मिलेंगे. इट विल बी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिकॉज दिस वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट दैट अ ब्रिटिश हैड. इसमें क्या होता था, एज वी नो कि ब्रिटिश रेवोल्यूशन जो था इट वॉज टेकिंग प्लेस, ब्रिटिश रेवोल्यूशन जो था इट वॉज टेकिंग प्लेस कहाँ पर? इंग्लैंड के अंदर. ठीक है, ब्रिटिश के अंदर हमारे पास चल रहा था. ठीक है, वी हैड रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रीज का रेवोल्यूशन चल रहा था. उसमें लोग क्या करते थे? ऑब्वियसली फॉर मेकिंग अ इंडस्ट्री व्हाट द 2 थिंग्स दैट यू नीड. द थिंग यू नीड इज रॉ मटेरियल and a big market.
ठीक है, एक बड़ी सी आपको मार्केट चाहिए जहाँ पे अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अब ब्रिटिश वांटेड कि मुझे इनमें से दोनों चीज़ें मिल जाए, और उसे दोनों चीज़ें इंडिया से मिल रही थी। इट वाज टेकिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम इंग्लैंड, और वहाँ पे जाके इंग्लैंड में बनाता था, मतलब इंडिया से लेके इंग्लैंड लेके जाता था, एंड दैट जो प्रोडक्ट्स बनाता था वो चीपर प्राइसेस पे आके इंडियन की लोकल मार्केट के अंदर सेल करता था। उससे क्या हुआ, हमारे पास जो लोकल पॉपुलेशन थी ना, जो लोकल प्रोडक्ट्स थे उनकी इंडस्ट्री से सफ़र्ड किया, बिकॉज चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा सस्ती बेच रहे थे ब्रिटिश, तो फिर बाकी जो लोग थे उनकी वो ख़रीद नहीं रहे थे, इसलिए वजह से हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट रेट था वो डिक्रीज़ हो गया था उस वक्त। ठीक है, तो ये कॉजेज़ थे एक वॉर के। उसके बाद लैंग्वेज इशू, एज वी नो कि 1834 के अंदर ब्रिटिश ने ना नेशनल लैंग्वेज बना दिया था इंग्लिश को, ठीक है, लीविंग पर्शियन एंड हिंदी। हिंदी जो थी वो मुस्लिम्स की नहीं थी, वो हिंदूज़ की थी, और जो पर्शियन थी वहाँ पे वो मुस्लिम्स की थी। ठीक है, उनकी नेटिव लैंग्वेज को उन्होंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इन 34 के अंदर नेशनल लैंग्वेज बनाई, फिर 35 के अंदर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट एजुकेशन को ऐसा पास किया गया था जिसमें स्कूल्स और कॉलेजेस में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कराया गया था, और उसे ऐसा वे ऑफ कम्युनिकेशन बनाया गया था। एंड उसको बोला था कि वेस्टर्न करिकुलम भी इंट्रोड्यूस कराया गया था इंडियन स्कूल्स के अंदर, एंड बोला था कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाई लॉ कोर्ट लाइक द इंग्लिश बिकम द लैंग्वेज, और एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट वगैरह होगी वो सिर्फ इंग्लिश यूज़ करेगी, एंड लॉ कोर्ट्स में भी इंग्लिश यूज़ की जाएगी। आई होप दैट्स क्लियर। उसके बाद वी हैव अ रीज़न विच सेज कि वी हैड रिलीजियस इशूज़। ऑब्वियसली जो ब्रिटिश था इट created a lot of religious issues among the people and causes of war के अंदर, like the main reason war क्यों हुई थी वो religion पे की, because मुस्लिम और हिंदू जो है ना भाई, कभी भी आपके religion पे बात आ जाए ना, they will never hear something like that। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ तो कदम उठाएंगे, तो उसी चक्कर में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हुई थी, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्यों हुई थी, व्हाट वाज द मेन रीज़न। अब ब्रिटिश के कुछ हमारे पास रिलीजियस इश्यूज़ क्यों बने। अब ब्रिटिश जो था उसने अपना कल्चर जो हमारा रखा था वो हमेशा सुपीरियर रखा था, और इंडियंस के कल्चर को बस प्राइमरी रखा था। ठीक है, अब कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज थे। ठीक है, मिशनरीज कौन थे, ये लोग क्रिश्चियन लोग थे जो क्या करते थे, लोकल मार्केट में आ गए थे, दे केम फ्रॉम इंग्लैंड, वो अपना एक सेटिंग बना के आए थे, और वो ना इंडिया आए, उन्होंने लोकल पॉपुलेशन को फोर्सफुली कन्वर्ट करने लगे इनटू द क्रिश्चियनिटी। ठीक है, उन्होंने लोकली कन्वर्ट किया था, मतलब लोकली पीपल को कन्वर्ट किया, उनको बताया कि हाँ क्रिश्चियन आ जाओ, और जो स्कूल्स उन्होंने बनाए वहाँ पे आगे स्कूल्स बनाए, और वहाँ पे बाइबल पढ़ाई उन्होंने, और जिसकी वजह से जो मुस्लिम के उलमास थे उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। ठीक है, इन दिस स्कूल द मिशनरी टॉट क्रिश्चियनिटी एंड एक्सपेक्ट लोकल रिलीजन्स टू बी गिवन अप विच रिसेंटेड बाय मुस्लिम्स हिंदू सिक्स अलाइक। ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जो लोकल रीजन्स वगैरह हैं उसको आप सब छोड़ दो। अब यहाँ पे क्या हुआ था, दे वर ऑल्सो फोर्स टू एबडन पर्दा विच वॉज अ इंडियन कस्टम, इट वॉज अ मुस्लिम कस्टम फॉर सेंचुरी। इंडियन भी कस्टम आ जाता है, तो पर्दा क्या होता है, ऑब्वियसली सबको पता है, covering something your body, so it was also banned in that time, which is so pathetic. Then उसके बाद the killing of baby daughters was declared as a murder. ठीक है, then suti was also banned, which was a ritual जहाँ पे क्या होता था, if the husband died, ठीक है, तो इन हिंदूज कस्टम what we do कि हम लोग जलाते हैं, ठीक है, the dead body, so हस्बैंड की बॉडी के साथ, ठीक है, जो वुमेन भी होगी, जो जिंदा होगी, उसकी वाइफ होगी, उसको भी जला देंगे। सो दिस वाज लाइक समथिंग बहुत बुरा होता था दैट टाइम। सो आई थिंक सो दिस वॉज अ गुड थिंग दैट ब्रिटिश डिड सो फॉर, बट ऑब्वियसली अगर वो हिंदू का रिलीजन था तब जाके हिंदूज को बहुत ज़्यादा चिढ़ बची थी, बिकॉज वेन यू थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग गुड दैट यू डू, ऑब्वियसली हमें चिढ़ मच जाती है अगर मुझे कोई यहाँ के बताए कि तुम ये करो वो करो। सो उस वजह से इट एक्चुअली रिसेंटेड अ लॉट ऑफ पीपल। एंड क्या हुआ था, अब देखो यहाँ पे ब्रिटिश ने पहले ही, जैसे कि अभी ऑल्सो रेड कि हमारे पास औरंगजेब था, उसने भी सती बैन किया था, और बंगाल के एरियाज में भी हो रही थी तभी भी। ठीक है, although the British had been eloquent to involved in banning this practice, there was a little opposition of the outlawing of। ठीक है, अब विडो जो थी को एजुकेशन भी अलाउ कर दी थी। को एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों साथ पढ़ते हैं।
which is not, which is haram in Islam. उसके बाद widows were allowed to remarry. अब it is also said कि जो Indian people थे, अगर वो Indian हमारे पास army officers हैं, so they need to convert themselves into Christianity in order to serve as a army. ठीक है, अगर उनको army में रहना है तो उनको Christians बनना पड़ेगा पहले. This was something British ने बहुत बुरा किया. ठीक है. Then we had some educational reforms. सबसे पहले हमारे पास लॉर्ड मैक्यूले था. He came from England and he just started setting up some schools where he did taught Bible. He taught some Western curriculum. He introduced Western curriculum, some Western ideas, and he always used to think that Western ideas were better than whatsoever the Hindus or the Muslims had or the India had so far. So, and which will definitely help the British to govern effectively. And Indians had to send their children because उनको पढ़ना तो था ही. ठीक है. उसके बाद देन वी हैव पोस्टिंग ऑफ सोल्जर्स टू फॉर. तो अब व्हाट ब्रिटिश डिड कि जो इंडियन सोल्जर्स जो होते थे उनकी पोस्टिंग इंडिया से थोड़ा दूर करते थे, लाइक आउट ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट उस एरियाज़ में, ताकि दे कैन क्रिएट देयर इन्फ्लुएंस मोर इनटू दी सब कॉन्टिनेंट और मोर इनटू दी इंडिया, वो ज़्यादा जगह पे रूल कर लें. उसके बाद वेस्टर्नाइजेशन. अब ब्रिटिश ने ना इंडिया को वेस्टर्नाइज किया था, मतलब उसने इंटरफेयर किया रोड के अंदर उसने रोड बनाए. ठीक है. रेलवेज़ के अंदर उसने, हॉस्पिटल्स में किया. ठीक है. कम्युनिकेशन चीज़ों में उसने बहुत ज़्यादा टांग अड़ाई, जो हिंदूस और इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई. उन्होंने सोशल सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन के अंदर उन्होंने इतना किया बिकॉज ऑब्वियस वेस्टर्न एजुकेशन इन्फॉर्म थी. तो ये सब चीज़ें जो थी हिंदूस को बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर रही थी. ठीक है. एंड इंडियंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी. ठीक है. तो वेस्टर्नाइजेशन किया. उसके बाद द मेन रीज़न विच इज़ ग्रीस कार्टेजेस. मेन रीज़न. ठीक है. ये कब हुआ था? 1857 के अंदर हुआ था ये वाला. इट वॉज लाइक द मोस्ट इमीडिएट रीज़न, लाइक मोस्ट मेन रीज़न. इसमें क्या था कि हमारे पास न्यू ग्रीस कार्टेजेस लाइक द पाउडर समथिंग लाइक, ठीक है, कोटेड था. सो उन्होंने ब्रिटिश ने एक न्यू राइफल को इंट्रोड्यूस किया था जिसके अंदर ग्रीस कार्टेजेस से हमारे पास कोटिंग हुई थी. एंड दैट कोटिंग वाज ऑफ फैट ऑफ पिग एंड काउ. सो पिग इज रिलीजियस, इज हराम इन इस्लाम, एंड काउ इज रिलीजियस ए होली एनिमल फॉर दी हिंदूज. तो फिर उस चीज़ पे जो क्या है, हिंदूज को और मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा चिढ़ मची. एंड इन ऑर्डर टू यूज़ अ राइफल, ठीक है, तो दे हैड टू च्यू इट फर्स्ट फ्रॉम द माउथ इन ऑर्डर टू यूज़ दैट. तो फिर उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा लोगों को हुआ एंड द वॉर स्टार्टेड. जो हमारे पास आर्मी ऑफिसर्स हैं इंडियन एंड मुस्लिम्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हल्ला मचा दिया. ठीक है. अब इधर है कि क्रिएटेड डिस्ट्रप्शन अमंग द सोल्जर्स, मैनी सोल्जर्स रिफ्यूज टू डू दैम. एंड फिर ब्रिटिश ऑफिसर्स ने क्या किया, उन सबको जेल के अंदर डाल दिया था. ये बहुत सारी चीज़ें हुई थी. एंड फिर व्हाट दे डिड इन द एंड कि उन्होंने वॉर स्टार्ट कर दी. फिर हमारे पास है फर्दर क्यूरियारिटीज़ कि आगे क्या हुआ. Here they say is that sale laws, excessive taxation ruined the landlords and peasants alike, because इतने सारे लॉज बना दिए थे इन्होंने, टैक्स ही बढ़ाते. और एक और हमारे पास पॉलिसी थी जिसमें अगर इफ़ यू हैव अ लैंड एक्सनेशन पॉलिसी नहीं थी, वो इट वाज समथिंग दैट हम आगे जगह पढ़ेंगे, जिसके अंदर वो चीज़ मैंशन थी कि इफ़ यू हैव अ बिग लैंड, अगर आपके ज़्यादा लैंड तो यू नीड टू पे हाई टैक्सेस. सो दैट वाज लाइक नॉट फाइन. ठीक है. एंड देयर वाज करप्शन. अगर आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर गुड पर्पस. द सैलरी ऑफ सिपाहीज, जो सिपाहीज होते हैं वो इंडियंस को बोला जाता है. ठीक है. वो बहुत ज़्यादा कम थी एज़ कम्पेयर टू द ब्रिटिश फंड. ठीक है. डिफरेंट सैलरीज थी बिटवीन अमंग द ब्रिटिश और इंडियन के जो लोग थे, उनके अंदर सैलरीज का डिफरेंस था. सिविल सर्विस में इंडियंस को सबसे ज़्यादा कम जॉब दी जाती थी. सारे हाई जॉब्स जो थी ब्रिटिश को दी जाती थी. ठीक है. सो फर्दर में क्या आ गया, हमें सैलरीज इतनी नहीं मिली, हमें करप्शन टैक्सेस में बहुत ज़्यादा थी, सिविल सर्विसेज में भी नहीं देते थे. सो या दीज वर द कॉजेज ऑफ वॉर एंड द मेन रीजन ऑफ कॉजेज ऑफ वॉर वाज ग्रीस कार्टेजेस. So I hope this is clear to you guys. We'll meet in our next video and then we'll learn about why the failure of war, what the result of the war was. ठीक है. So I hope you guys get safe.